دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جن کی زندگی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی کے لیے ایک مکمل سبق ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنتے وقت ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر بھی کریں گے، ساتھ ہی ان کے بیٹوں یعنی کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی باتیں کریں گے۔ دوستوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش پر ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پر 100 سال اور کل عمر رہی 175 سال۔ تو یہ ایک لمبا اور بھرپور سفر ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ساتھ جڑے رہیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت وہاں بت پرستی بالکل عام ہو چکی تھی۔ لوگ پتھر کی مورتیوں کے آگے جھکتے تھے جنہیں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر بھی اس کے آگے جھکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے، آزر کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ بھی بت بناتے تھے اور بیچتے تھے، اسی سے کمائی چلتی تھی۔ کیا لاجواب مورتی بنائی ہے۔ اس مورتی کی جو بھی منہ بولی قیمت ہوگی ہم ادا کریں گے۔ تو سودا پکا سمجھو، تم نے میری محنت کا صحیح مول لگایا ہے، یہ مورتی اب تمہاری ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اللہ نے ان کے دل میں پہلے سے ہی نور ڈال دیا تھا۔ یہ بے جان پتھر جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، پھر بھی لوگ انہیں خدا مان کر پوچھتے ہیں۔ وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی طرف نہیں گئے، کبھی بھی اس کی طرف ان کے دل میں کوئی انٹرسٹ پیدا نہیں۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، ابا یہ مورتیاں جن کے آگے آپ جھکتے ہیں یہ ہیں کیا؟ ایک بچے کا سوال نہیں کیا۔ والد نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سیدھا جواب تھا، تو پھر آپ بھی غلطی پر ہیں۔ کیا تو میرے خداؤں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ میرے سامنے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو غصہ کیا نہ چلائے، بلکہ بالکل سکون سے کہا، ابا میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کروں۔ اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی خاص محبت حاصل تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا تھا، اور یہ خاص مقام ملا کیونکہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کی۔ اس چیز سے سبق کیا ملتا ہے؟ گھر میں اختلاف ہو تو غصے میں بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ یہ سب سے کمزور عمل ہے، سب سے کمزور رد عمل ہے یہ کہ غصے میں بدتمیزی کرنا ماں سے باپ سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ سچ پر قائم رہو، لیکن محبت اور ادب یہ کبھی مت چھوڑو، کیونکہ آپ کا اخلاص ہی آپ کے ساتھ جائے گا۔ آج بھی جن گھروں میں بات نرمی سے ہوتی ہے وہاں تبدیلی زیادہ آتی ہے، جلدی نہیں تو دیر سے مگر پادیر رہتی ہے۔ ستاروں والا واقعہ، دوستوں عقل سے غور کرنا۔ ایک شہر میں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی عبادت رات کو ہوتی تھی کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو نظر آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ رات کو نکلے تاکہ انہیں سمجھا سکے۔ اللہ نے انہیں آسمان و زمین کی سلطنت دکھائی تھی۔ رات کو ایک خوبصورت چمکدار ستارہ نظر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بطور مثال کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ڈوبنے والی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ پھر چاند نکلا، اس کے ڈوبنے پر کہا، اگر میرے رب نے راہ نہ دکھائی
तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर सूरज निकला, सबसे बड़ा, लेकिन वो भी गुरूब हो गया। उन्होंने ऐलान किया कि मैं इन सबसे बेजार हूं जो आते हैं और चले जाते हैं। मैंने अपना रुख उसकी तरफ कर लिया जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। ये जब ऐलान हुआ तो दोस्तों इससे सबक क्या मिलता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकल से काम लिया, है ना। आज हम भी जब किसी चीज की तरफ भागते हैं, फेम, पैसा, रिश्ते, तो सोचें कि ये सब चीजें डूब जाती, बाकी नहीं रहती, ये कहीं ना कहीं चली जाती। दोस्तों, वो रब ढूंढो जो हमेशा है और कभी खत्म नहीं होगा, जो लाफानी है। खैर, आगे चलते हैं। दोस्तों, बाबुल में हर साल एक बड़ी ईद होती थी। लोग बुतों के सामने खाना रखते और शहर से बाहर मेले में जाते। जब उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को साथ चलने को कहा तो आपने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं बीमार हूं। सब चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए। बुतों के सामने ढेर सारा खाना पड़ा जिसे उन्होंने सुबह रखा था। जो लोगों थे, बुत परस्त जो लोग थे, उन्होंने बुतों के सामने सुबह सुबह वो खाना रखा और ये माबूद उसे छू भी नहीं सकते थे क्योंकि वो बुत थे ना, वो तो पत्थर के बने हुए थे। यही तो बुत परस्ती थी, यही तो जाहिलानापन था। आपने मजाकन कहा, ये खाना खाते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो? खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते भी नहीं? और फिर कुल्हाड़ी उठाई। वो कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सब बुत तोड़ डाले। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। लोग वापस आए तो हंगामा हो गया। सब जमा हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, बोला, ये काम तुमने किया है? आपने कहा, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया है, इसी से पूछो। लोग सोचने लगे, फिर बोले, ये बेजुबान है, बोल नहीं सकते। हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है? कौन है जिसने ये किया है? इब्राहिम, जो कि बुतों के खिलाफ था, तो उसे पकड़ कर लाओ। ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं का ये हाल किया है? शायद ये काम इसी बड़े बुत ने किया होगा जिसके कंधे पर ये कुल्हाड़ा टिका है। उसी से पूछ लो अगर इनमें सच में बोलने की ताकत है। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बोल ही नहीं सकते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, तो फिर इनकी इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं? क्यों करते हो इनकी इबादत? दोस्तों, कितनी प्यारी बात है ना। इससे सबक क्या मिलता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चीखना चिल्लाना नहीं किया। उन्होंने लोगों को उन्हीं की अपनी बात से सच समझा दिया। तो क्या तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो न तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकते हैं न कोई नुकसान? अफसोस है तुम पर और इन बेजान मूर्तियों पर भी। क्या तुम जरा भी अकल नहीं रखते? जब कभी किसी से बात करनी हो तो चिल्लाने के बजाय, चीखने के बजाय ऐसे ही सवाल करने चाहिए। ऐसे सवाल करने चाहिए जिससे उनका खुद का दिमाग चले, वो सोचने पे मजबूर हो जाए। यही सबसे मौसर तरीका है। यही है सबसे मौसर तरीका, इसके अलावा कोई अच्छा तरीका नहीं। दोस्तों, एक और इम्तिहान हुआ जिसपे अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा आपको बताएंगे कैसे हुआ। लोगों ने फैसला किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए। एक चटियल मैदान मुंतखब किया गया।
दूर दूर से लकड़ियां जमा की गई। मर्द, औरतें, बच्चे सब ने उसमें हिस्सा लिया। लकड़ियां लाकर रखी। आग इतनी तेज भड़की, इतनी बढ़ गई कि वहां करीब खड़ा होना मुमकिन नहीं था। तो कैसे हजरत इब्राहिम को उधर डालते आग? तो उसके लिए एक झूला बनाया, झूला तैयार किया गया। उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया गया और बिठाकर झूले में ऐसे हिला के फेंका गया। जब उन्होंने झूले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका झूले से, तो सिर्फ उन्होंने इतना कहा, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतर कारसाज है। दोस्तों क्या बात है, भरोसा देखें। अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई। मौजा अल्लाह का, आग ठंडी हो गई। सिर्फ वो रस्सियां जली जिनसे उन्हें बांधा गया, बाकी सब सलामत रहा। उनके कपड़े, उनका लिबास, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाद में फरमाया, उस आग में मुझे जो सुकून मिला बाहर आने के बाद वो कभी नहीं मिला। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद पूरे बाबल से सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम, बाकी सब कुफ्र पर डटे रहे। दोस्तों इस सारे वाक्य से सबक क्या? जब जिंदगी में ऐसा लम्हा आए जहां कोई हल नजर ना आ रहा, तो क्या बोलना चाहिए? हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। सिर्फ ये अल्फाज है। ये एक मुकम्मल यकीन है। आज सब दरवाजे बंद हो तो अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में भी सुकून पाया था। यह अल्लाह के भरोसे का नतीजा है। जितना पक्का भरोसा, पक्का यकीन होगा, उतना ही आप सुकून में होंगे। नमरूद से मुकाबला जब हुआ, अकल की जीत हुई। बाबुल का बादशाह नमरूद था, जो बहुत ताकतवर, जमीन के बड़े हिस्से पर उसकी हुक्मरानी थी। उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग से सलामती की खबर मिली तो उसने उन्हें दरबार में बुलाया। जाहिर सी बात है, ये एक मौजज़ा था। इस मौजज़े की खबर मिली तो उसने दरबार में बुला दिया। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है इब्राहिम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा, मैं भी ये कर सकता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है? जाओ, जाकर 2 कैदी लेकर आओ। अब इसमें से एक को कत्ल कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा। क्या समझा? उन्होंने समझा कि इस मौजू पर बहस बढ़ाई तो ये उलझता रहेगा। उन्होंने एक ऐसी दलील दी जिसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसे मगरिब से ले आ।
नमरूद खामोश हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। अल्लाह ने फरमाया, वो काफिर इस बात से बिल्कुल मबहूत रह गया। उसके बाद नमरूद ने कहा, इब्राहिम तुमने ये मुल्क छोड़ देना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला, ये मुल्क छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक को अलविदा कहा और शाम की तरफ चले। इसमें सबक क्या है? ये सारे नमरूद के वाक़े के साथ सबक क्या मिलता है? तो बड़े से बड़े और ताकत से ताकतवर इंसान के पास भी सच का मुकाबला करने की ताकत नहीं होती। जब आपके पास सच और दलील हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। सही वक्त पर सही बात कहने की हिम्मत रखिए, बस इतना करें। आगे चलते हैं दोस्तों। मिस्र का सफर, मुश्किल में भी हिकमत थी। हुआ क्या? शाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र भी गए। वहां के बादशाह को खबर मिली कि एक बहुत खूबसूरत औरत के साथ एक मुसाफिर आया है। उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। ये सैयदा सारा अलैहिस्सलाम थी। बादशाह ने उन्हें बुलाया, उन्हें हुक्म दिया कि आप आए हमारे पास, और साथ ये भी कहा कि जो उनके साथ है उसे कत्ल कर दो अगर वो उनका शौहर है तो। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले ही इशारा दे दिया। इस पूरी जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मोमिन नहीं। अगर ये तुम्हारे बारे में पूछें तो कह देना कि तुम मेरी बहन हो। ये झूठ नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुलाया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह तुझे मालूम है मैंने हमेशा अपने आप को महफूज रखा। उस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न करना। मेरे सिपाहियों ने तारीफ तो बहुत की थी, लेकिन हकीकत उससे कहीं बढ़कर है। बादशाह ने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ अकड़ गया। ऐ मेरे रब, मैंने उसे तेरे हवाले किया, उस जालिम से उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। मेरा हाथ! 3 बार ये हुआ। आखिर वो डर गया और कहा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। उसने उन्हें आजाद कर दिया, फौरन आजाद कर दिया, और अपनी बेटी हाजरा को खादमा के तौर पर उनके साथ दे दिया। सोचे जरा, मुश्किल हालात में घबराने के बजाय अल्लाह से मांगो और हिकमत से काम लो। सारा अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि जब आपका दामन साफ हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो वो खुद आपकी हिफाजत करता है। कोई भी ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर ईमान पक्का होना चाहिए, भरोसा पूरा होना चाहिए। दोस्तों, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन आ गए। सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं थी। उन्होंने खुद ही कहा, मेरी लौंडी हाजरा को अपनी बीवी बना लो, शायद अल्लाह इनसे तुम्हें औलाद दे दे। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। अल्लाह ने जल्द ही उन्हें एक बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल अता किया। ये खुशखबरी थी, लेकिन साथ सारा अलैहिस्सलाम के दिल में फित्री रश्क भी आया। ये इंसानी जज्बा है, कोई ऐब नहीं है। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि हाजरा और इस्माइल को मुझसे दूर कर दे। 85 से 86 साल की उम्र तक औलाद न हो और फिर भी यकीन हो कि अल्लाह देगा, ये सब्र की इंतहा है। आज हम चंद महीनों में ही हिम्मत हार देते हैं। सब्र का इनाम हमेशा मिलता है, बस वक्त अल्लाह का है, हमारा नहीं है। अल्लाह का हुक्म आया, हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ आओ। दोस्तों, उस वक्त
मक्का बिल्कुल वीरान था, न पानी, न खाना, न कोई इंसान, सिर्फ पहाड़ और रेत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भरोसा, अल्लाह पे ईमान देखे, फर्मा बरदारी देखे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहां छोड़ा और वापस चलने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम पीछे आई और पूछती रही, हमें कहां छोड़कर जा रही हो? यहां ना पानी है, ना कोई इंसान है, ना खाने की कोई चीज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया और आगे बढ़ते रहे। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया और हाजरा अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर सुकून के साथ कहा, तो फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये कहकर वो वापस पलट गई। क्या सब्र, क्या ईमान। हाजरा अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वो जाया नहीं करेगा, ये ईमान का वो दर्जा है जहां इंसान को सुकून मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है। अगर रब का यही फैसला है तो वो हमें जाया नहीं होने देगा। जब भी लगे कि रास्ता बंद है, खुद से पूछो, क्या मैं अल्लाह की राह पर हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? अगर हां तो घबराओ मत और चलते रहो, क्योंकि घबराने की जरूरत ही नहीं। दोस्तों, फिर क्या हुआ? कुछ दिन में पानी, खाना सब खत्म हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख से रोने लगे। मां का दूध भी खुश्क हो गया था, क्योंकि कुछ खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। पानी बिल्कुल खत्म हो गया। मैं तुम्हें यूं प्यासा मरते हुए नहीं देख सकती। हाजरा अलैहिस्सलाम बच्चे को वहीं छोड़कर सफा पहाड़ी की तरफ गई और उस पर चढ़ी। इधर उधर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर वहां से उतरी मरवा पहाड़ी की तरफ, वहां भी कुछ नहीं था। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए, दौड़ती रही, थकती रही, लेकिन रुकी नहीं। कोई है? मेरी मदद करो। या अल्लाह, हिम्मत दे। इस्माइल की आवाज नहीं आ रही। इस्माइल, मेरा बच्चा। आखिरी चक्कर पर आवाज आई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी, भागी। जैसे ही वहां पहुंची तो देखा उनके नन्हे कदमों के नीचे से पानी फूट रहा। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था, जिन्होंने जमीन पर जोर से मारा तो जमजम का चश्मा निकला। हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी के गिर्द जल्दी जल्दी पत्थर रखने शुरू कर दिए कि कहीं पानी बह ना जाए, और कहा जमजम, यानी कि रुक रुक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम करे। अगर वो न रोकती तो जमजम एक बड़ा दरिया होता। यही आब जमजम आज भी हजारों साल बाद बह रहा है, ठीक उसी तरह। हाजरा अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी थी, थकी नहीं, भूखी प्यासी, लेकिन 7 चक्कर लगाए। जिंदगी में जब कोई रास्ता नजर ना आए ना, तो मेहनत बंद नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का रिज्क
अक्सर हमारी कोशिशों के दरमियान से निकलता है। बैठ जाने वालों को मुआवजा नहीं मिलता, कोशिश करने वालों को मिलता है। दोस्तों, जब जमजम का चश्मा निकला तो परिंदे उस तरफ आने लगे। परिंदे सिर्फ वहीं मंडराते हैं जहां पानी होता है। सही कहा जनाब, वहां पानी है, एक चश्मा है और एक औरत वहां मौजूद है। हम मुसाफिर हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम यहां आपके पास बस जाएं? हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो, मगर याद रहे इस पानी पर हक सिर्फ मेरा होगा, तुम्हारा इस पर कोई मालिकाना हक नहीं। हमें आपकी शर्त मंजूर है। इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हीं के दरमियान पले, उनसे अरबी सीखी, बल्कि उनसे भी ज्यादा फसीह। उन्हीं में उनकी शादी हो गई, उसी कबीले में उनकी शादी हुई और उन्हीं की नस्ल से आगे चलकर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सारे मामले में सबक क्या मिलता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। क्या दुआ थी? ऐ अल्लाह, लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे। लोग पूरी हो गई, वीरान जगह आबाद हो गई। जब आप अल्लाह के लिए कोई कदम उठाते हैं तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खुद खोलता है, अक्सर ऐसी जगहों से जहां आप सोचते भी न थे। तब आप ऐसी जगह से आपको कोई रास्ता मिल जाता है जहां आपको दिमाग भी नहीं जाता। दोस्तों, आगे क्या हुआ? एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आए और आराम करते हुए ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह कर रहे हैं। दोस्तों, अंबिया का ख्वाब वही होता है। अल्लाह का पैगाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए थे। ये अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और बताया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। अब तू बता, इस पर तेरी क्या राय है? अब्बा जान, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। दोस्तों, दोनों बाप बेटे एक पहाड़ की तरफ चल पड़े। क्या बात है! इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा, मुझे कस के बांध दीजिए ताकि मैं तड़पूं नहीं, और मेरे हाथ पैर अच्छी तरह जकड़ दें, और मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मेरी आंखों पर ना पड़े और आप हिचकिचाएं नहीं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह का हुक्म हुआ, इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया है। ये एक खुला इम्तिहान था। तो और जन्नत से उसी वक्त एक मेंढा आया जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले कुर्बान हुआ।
वो मेंढा जन्नत में 40 साल चलता रहा, सफेद रंग, खूबसूरत सींगों वाला। आज भी हम जब कुर्बानी के लिए जाते हैं तो वैसा ही कुछ ढूंढते हैं। दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दिया जो सबसे ज्यादा कीमती था, अपना इकलौता बेटा जो 86 साल की उम्र में मिला था। और हमसे अल्लाह ने क्या मांगा है? बस नमाज, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा माल। क्या हम ये भी नहीं दे सकते? दोस्तों, 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर आए। वो असल में सुदूम की बस्ती को तबाह करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देने आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहमान नवाजी की। एक भुना हुआ बड़ा सा बछड़ा ले आए, लेकिन मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डरे, अनजान लगते हैं। फरिश्तों ने बताया, हम फरिश्ते हैं, लूत की बस्ती की तरफ जा रहे हैं और आपको खुशखबरी देते हैं कि ईसाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने वाली है। उसके बाद याकूब की भी। सारा अलैहिस्सलाम पास खड़ी थी। वो हैरत से हंस पड़ी और बोली, मैं बूढ़ी हूं, मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, बच्चा कैसे? फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करते हो? दोस्तों, ये अल्लाह का फैसला है। उन्होंने कहा, ये अल्लाह का फैसला है। सारा अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में बेटा मिला। आज हम 30 से 40 की उम्र में सोचते हैं अब बहुत देर हो गई है। अल्लाह के लिए कोई वक्त देर नहीं होता। अल्लाह से मांगते रहो, चाहे कितना ही वक्त गुजर जाए, मांगते रहो। दोस्तों, अब आता है तामीर काबा। बाप बेटे का मुश्तरका काम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल मक्का आते थे। एक दफा आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा इस्माइल, अल्लाह ने मुझे एक हुक्म दिया है। अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे आप पूरा करिए, लेकिन क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? जी अब्बा, मैं जरूर मदद करूंगा। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहां इस जगह पर उसके लिए एक घर तामीर करूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते। जब दीवारें इंसानी कद तक पहुंची तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर खड़े होकर काम किया। अल्लाह ने वो पत्थर नरम कर दिया और उनके पांवों के निशान उसमें बैठ गए। यही आज मकाम इब्राहिम है, जहां हाजी तवाफ के बाद नमाज पढ़ते हैं। तामीर के दौरान दोनों ने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी मेहनत कबूल फरमा, हमें फर्मा बरदार बना, हमारी औलाद में से भी फर्मा बरदार गुरोह बना और हमें इबादत का तरीका सिखा। और दुआ की कि हमारे बाद उन लोगों में एक ऐसा रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयात पढ़कर सुनाए। ये दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में कबूल हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने साथ मिलकर अल्लाह का घर बनाया। अपने घर और अपनी औलाद को नेक कामों में साथ लेकर चले। ये रिश्ता दुनिया में भी मजबूत करता है और आखिरत में भी। अपने बच्चों को हर नेक काम में साथ रखें, खुद भी करें और उनको भी उसकी दावत दें। दोस्तों, फिर हज का ऐलान, एक आवाज जो आज भी चली आ रही है। काबा मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? अल्लाह ने फरमाया, आवाज लगाना तुम्हारा काम है,
اور پہنچانا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے اور آواز نکالی۔ اللہ نے وہ آواز اس وقت کے تمام انسانوں تک پہنچا دی، یہاں تک کہ جو ابھی پیدا ہونے والے تھے ان کی روحوں تک بھی، اور آج تک کروڑوں لوگ ہر سال لبیک کہتے ہوئے حج پر جاتے ہیں۔ اے لوگوں، کعبہ کی طرف آؤ، حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے کیا سبق؟ جب آپ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں تو آپ کا اثر آپ کی زندگی سے بہت آگے جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے تھے، لیکن ان کا کام آج بھی زندہ ہے۔ نیک کام کبھی ضائع نہیں، چاہے آپ کو نظر نہ آئے، اس کے آثار پادیر رہتے ہیں دیر تک۔ پوری زندگی کا خلاصہ، ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر پائی تھی۔ پوری زندگی میں انہوں نے کبھی اللہ کا حکم نہیں ٹالا۔ ایک چیز، اللہ کا حکم کبھی نہیں ٹالا۔ آگ ہو، بیٹے کی قربانی ہو، گھر بار چھوڑنا ہو، یا بیوی اور بچے کو ویرانے میں چھوڑنا ہو، ہر امتحان میں ایک ہی جواب، اللہ پر بھروسہ، سر تسلیم خم۔ اسی لیے اللہ نے انہیں خلیل اللہ یعنی کہ اپنا دوست قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا ابراہیم نے وفاداری کی ہر معاملے میں بغیر کسی استغنا کے۔ دوستوں، آج بھی ہر نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، حج میں ان کی یادیں زندہ کرتے ہیں، عید قربان میں ان کی سنت پر چلتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی میراث ہے جو قیامت تک چلتی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک ہی بات سکھاتی ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، چاہے راستہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ جو دیتا ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور جب وہ لیتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ بس اسی ایک یقین کے ساتھ چلتے رہو۔ دوستوں، اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میری ٹیم اس سارے سلسلے میں بہت محنت کرتی ہے۔ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ کا ایک کلک کافی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔